Amid political turmoil in the Congress Himachal Pradesh unit, the Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu-led government has managed to retain power with the successful passage of the state budget for the financial year 2024-25. Now, the Congress High Command was also able to pacify party leader Vikramaditya Singh, who had earlier stepped down as the Public Works Minister, with him now withdrawing his resignation. The political scenario in Himachal Pradesh had changed dramatically after the defeat of Congress candidate Abhishek Manu Singhvi in the Rajya Sabha elections and the resignation of Vikramaditya Singh as well. However, after meeting the observers that had been appointed, including Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar and senior Congress leader Bhupinder Singh Hooda, the PWD Minister for Himachal Pradesh has stated, and I quote, "There is no crisis in the government." In fact, there are several reactions regarding what some Congress leaders have to say about all of these high-octane developments. Let's listen into these first. मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers. मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में with due consultation with our people मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने। There is a difference between taking back the resignation and there is a difference between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete. तो मैंने ये कहा है क्योंकि हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि खराब क्या है। खराब क्या है? नहीं, वो डिस्कशन इससे रिलेटेड है। हमारे जो चुनाव है उससे रिलेटेड डिस्कशन है और कोई डिस्कशन नहीं है। हमारी सरकार सुरक्षित है। हमने क्या नीति बनानी उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको वहाँ का वकील बता सकते। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने जो है आज अपना जो बहुमत है सदन में साबित किया है और अपना जो बजट है उसको बहुमत से पास किया है। और जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट, इट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो हमने पास कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है व्हिप इशू किया गया था कि कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो विधानसभा में उपस्थित होंगे और बजट के हक में जो है वोट डालेंगे। विधायकों सबसे मिलकर बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। उसी सिलसिले में सबसे पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसी चीफ की राय ली, विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात ली। और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे।
All right, there of course we've heard several senior Congress leaders comment regarding this potential crisis situation that seems to have abated for now, considering the fact that the Himachal Pradesh Assembly has been adjourned. Meanwhile, my colleague Kameshwar joins us live on the broadcast to give us further details. Kameshwar, high-octane political developments have been taking place in Himachal Pradesh ever since the Rajya Sabha poll results had been declared. There was a buzz regarding cross-voting. There's a buzz regarding BJP leaders bringing a no-trust motion. Meanwhile, Vikramaditya Singh had tendered his resignation as the PWD minister, but he's withdrawn that now. So what all can you share with our viewers that can give them a comprehensive picture of the political slugfest in Himachal Pradesh? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री, उन्होंने लगभग 10:30 बजे इस्तीफा दिया, इससे कांग्रेस में हलचल मच गई। वहीं शाम के समय जो एक बैठक का आयोजन किया गया सिसिल होटल में, जो कि रात को 11:03 तक लगातार जारी रही, उसमें जो देखा गया, जो ऑब्जर्वर आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटका के डिप्टी सीएम शिव कुमार, तो उसके बीच जब देखा गया सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के बीच काफी नोकझोंक हुई और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी करते हैं, उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ऐसे में लगातार प्रतिभा सिंह की अगर बात करें, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से वीरभद्र गुट को हमेशा ही नजरअंदाज किया गया। यदि बात की जाए जो कांगड़ा में 1 वर्ष जो कांग्रेस सरकार का पूरा हो, उस दौरान जश्न का आयोजन रखा गया, लेकिन प्रतिभा सिंह को अनदेखा किया गया। वो सांसद भी है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी है। ऐसे में जो स्थिति थी वो अत्यधिक डगमगा गई थी। जो भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार द्वारा 1-to-1 प्रत्येक विधायकों के साथ कल बैठक का आयोजन किया, जिसमें बागी विधायकों को छोड़कर जो पूरी कैबिनेट थी सबके साथ विचार विमर्श किया गया। वही जो व्हिप जो जारी किया गया था, अगर देखा जाए जो 6 विधायक जो बागी विधायक थे, जब बजट पास होना था, कट मोशन होना था, वो उसमें उपस्थित नहीं थे, क्योंकि हर्षवर्धन चौहान ने पहले ही व्हिप जारी कर दिया था। यदि वह उस दौरान उपस्थित होते, अगर वोट नहीं डालते या भाजपा को वोट डालते, तो कहीं ना तो कहीं उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं उनके ऊपर जो तलवार लटकी थी वो भी अब कमजोर नजर आती है, क्योंकि जो 6 बागी विधायक थे वो कोई भी उसमें उपस्थित हुए, जिसमें ID लखनपाल, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, और ये कोई भी जो कटमोशन था और जब बजट पारित होना था उस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। ऐसे में जो निष्कासन की जो तलवार इनके ऊपर लटकी थी वो कहीं ना तो कहीं कमजोर नजर आती है। अगर देखा जाए जिस तरीके से सदन में कल मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा था कि खासकर जो विक्रमादित्य सिंह वो छोटे भाई है, जो मनमुटाव पार्टी में चला रहता है, उन्हें मनाया जाएगा, उनका इस्तीफा हम नहीं लेंगे। उन्होंने वही स्पष्ट रूप से कर दिया था, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले भाप लिया था, जो स्थिति थी वो काफी डगमगा गई थी। जो 6 बागी विधायक जब भाजपा को राज्यसभा के लिए वोट दिया, तो वहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्पष्ट हो चुका था कि सरकार के ऊपर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ऐसे में उन्होंने अपना जो कड़ा संज्ञान या कड़ी सख्त कार्रवाई जो बागी विधायकों के ऊपर करनी थी, उसे भी कल सिसिल होटल के पार उन्होंने कहा कि हम उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि अब कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और खासकर जिस तरीके से बैठक है 11:03 तक चली, कहीं ना तो कहीं जो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर चेंज जरूर होगा। अब ये देखना होगा कि लोकसभा से पहले होगा या लोकसभा के बाद। जो अधिकांश जो संभावना जताई जा रही है वो लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बदलता है तो जो डिप्टी सीएम जो मुकेश अग्निहोत्री वर्तमान में है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर देखा जाए जब वो नेता प्रतिपक्ष थे उस दौरान उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मजबूती के साथ कार्य किया। ऐसे में कहीं ना तो कहीं उनसे अधिकांश जो विधायक गण है वो खुश है। ये जरूर है कि जब सरकार बनी थी उस समय अधिकांश जो विधायक थे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में थे, लेकिन जिस तरीके से कार्यशाली मुख्यमंत्री की रही उससे सभी रुष्ट है। अगर हम बात करें विधायकों की, तो विधायक द्वारा जब उन्हें डीसी बदलना या कोई अधिकारी या डीजीपी या मुख्य सचिव को बदलने को कहा गया, मुख्यमंत्री ने नहीं माना। जो अगर बात करें जो मंत्री उन्हें काफी लेट होना है, जिसमें राजेश धर्मानी और राजेंद्र गोमा, और 1 माह तक उन्हें पोर्टफोलियो नहीं दिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश में 1 महीने तक मंत्री को कोई विभाग नहीं दिया, वो ऐसे ही घूमता रहा। इसके पश्चात अगर हम बात करें राजेंद्र राणा ने, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, उन्हें
उन्हें स्थान दिया गया। जो वीरभद्र कार्यकाल के दौरान सुधीर शर्मा शहरी मंत्री थे, उन्हें पद नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त जो वीरभद्र गुट है, उन्हें लगातार अनदेखा किया गया। 1 साल के जश्न में भी उनको नहीं बताया गया। और इसके अतिरिक्त जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो खुफिया तंत्र है वो काफी कमजोर है। हरियाणा से सीआरपीएफ की पुलिस आती, उन्हें कोई इसके बारे में कानो खान खबर नहीं। रात्रि के समय डिनर, सुबह ब्रेकफास्ट बागी विधायकों और 3 निर्दलीयों ने किया, लेकिन वोट उन्हें दिया, वो भाप नहीं सके। अगर इसमें कोई दोराई नहीं, जब से 14 माह कांग्रेस सरकार को आई है, चुनाव से दौरान ही उन्होंने एक नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में वो अपने विधायकों को नहीं समेट पाए, कार्यकर्ताओं को नहीं समेट पाया। उनसे प्रत्येक रूप से अगर हम एक्स एमएलए की बात करेंगे तो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो 6 से 7 बार जीते हैं, उनके भी कार्य नहीं हो रहे। कौल सिंह ठाकुर जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद उनके कार्य नहीं। उन्होंने आला कमान को कई बार अवगत करवाया कि कांग्रेस सरकार होते हुए हमारे कार्य नहीं हो रहे, जबकि भाजपा सरकार थी, छोटे मोटे कार्य हमारे ऐसे भी हो जाते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य seems to be some sort of a relief, some sort of calm that has in fact been brought about in the Congress in Himachal Pradesh. Now, what remains to be seen is whether this calm will persist or whether it is a calm before the storm. But even as we talk about the Congress, let's also take a look at what the BJP is also doing simultaneously. The Bharatiya Janata Party has held a legislative meet amid the political slugfest in Himachal Pradesh, and BJP leaders have now also shared their reactions regarding these developments. Let's listen in. देखिए, हमारा आरोप है कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो पक्षपात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की मदद कर रहे हैं, और उन्होंने अलोकतांत्रिक ढंग से हमारे 15 विधायकों को, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको निष्कासित किया और सरकार अपना बजट पारित करे, इसके लिए उनका जो है रास्ता प्रशस्त किया। इसलिए हमारा मानना है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। ये ठीक है कि बजट पारित हुआ है, परंतु सरकार अभी भी अल्पमत में है। क्या कांग्रेस की और विधायक आपके टच में हैं, छह के अलावा क्या? बिल्कुल, बहुत से विधायक है टच। देखिए, इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक यहाँ पर रखी गई है और बहुत से महत्वपूर्ण जो निर्णय अभी लेने भी है, और मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जो व्यवस्था परिवर्तन बताने वाली जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनका समय खुद ही सत्ता परिवर्तन का आ गया। मैं केवल इतना आपको हिंट देना चाहूंगी। सत्ता परिवर्तन कब तक होगा? क्या बीजेपी सरकार बना रही है? क्या बिल्कुल, अभी बातचीत होगी, निर्णय होगा, संगठन से भी अभी आपस में जो बातचीत करके जो निर्णय लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.